हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम आपकी साइंस बुक से एक बहुत ही एक्साइटिंग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है, सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। So, if you remember, in the last chapter, we all studied the heating effects of electric current, right? We know that when current flows, it can produce heat and light. But what if I told you that electricity has another, almost magical superpower, a kind of a hidden talent? Are you curious to know what that is? Well, here it is, the big secret. A simple wire, when an electric current passes through it, starts behaving exactly like a magnet. Yep, you heard that right. Electricity and magnetism are deeply connected, and that's the core idea we're going to explore today. So, how did we figure out this incredible connection? Well, it wasn't planned. It was a complete accident, discovered by a scientist named Hans Christian Ørsted, and this one chance moment changed science forever. Let's dive into that story. So, back in the year 1820, Hans Christian Ørsted was giving a lecture. He had a circuit set up, and nearby, there just happened to be a magnetic compass. And purely by chance, he noticed that whenever he switched the current on, the compass needle moved. It would deflect. This small, accidental observation was a huge breakthrough that eventually gave birth to amazing technologies like radio and TV. And the conclusion Ørsted drew from this is so important. His observation proved for the very first time that electricity and magnetism aren't two separate forces of nature. They were linked. They were in fact related phenomena. And this relationship was given a name, electromagnetism. It's this simple yet powerful idea that the flow of electric charge, which is our electric current, can produce a magnetic effect. So the most important point here is this: moving electricity creates magnetism. Okay, so we know that a current can act like a magnet. But what is a magnet's force? We can't see it, can we? It's this invisible field of influence all around the magnet. So the big question is, how can we possibly map something that's invisible? Just think about it. How would you draw a map of a force that you can't see with your own eyes? It sounds impossible, but there's a really clever and simple experiment that makes this invisible thing, well, visible. Here's how you can do it, just like in Activity 12.2 from your book. All you need is a bar magnet, a piece of paper, and some iron filings. You place the magnet, sprinkle the filings, and then gently tap the paper. What do you think happens next? And look at that. It's like magic. The iron filings arrange themselves into this beautiful, specific pattern. They are literally tracing the invisible lines of force. This pattern is a map of that magnet's force field. So, this region that we just mapped out, the area around a magnet where its force can be felt, has a scientific name. We call it the magnetic field. It's the magnet's area of influence. Now, these magnetic field lines have some really important properties, a few rules that they always follow. First, by convention, they emerge from the North Pole and merge into the South Pole. Second, they're always closed curves. Third, wherever the lines are close together, like near the poles, the magnetic field is stronger. And last, and this is a big one, two field lines can never, ever cross each other. That last rule is a bit of a puzzle, isn't it? Why is it that two magnetic field lines can't ever intersect? I mean, what would happen if they did? Let's think about that for a moment. And here's the simple, logical answer. If two lines were to cross, it would mean that at that single point of intersection, a compass needle would have to point in two different directions at the same time. And we all know that's just not possible. A compass can only point in one direction at any given spot. Simple. Okay, so now we understand what a magnetic field looks like. Let's go back to Ørsted's discovery and prove that a current-carrying wire really does create its own magnetic field. This is exactly what Ørsted saw, and it's what you'll find in Activity 12.4. If you pass a current through a wire from north to south, a compass placed under it deflects towards the east. But watch what happens when you reverse the battery terminals. Now the current flows from south to north, and the compass needle deflects to the west. This proves that the magnetic field has a direction, and that direction depends on the direction of the current. So, we've confirmed it. A current creates a magnetic field. But we know from our bar magnet experiment that fields have a specific shape or pattern. So what does the pattern of the magnetic field around a simple, straight, current-carrying wire look like? And there's your answer. The pattern is a series of concentric circles with the wire right at the center. If you were to sprinkle iron filings on a piece of cardboard with a current-carrying wire passing through it, like in Activity 12.5, you'd see this exact beautiful pattern emerge.
So, we know the shape of the field, but can we control its strength? What factors make this circular magnetic field stronger or weaker? Let's break down the rules. Check out how simple these relationships are. It's very logical. First, the strength of the magnetic field is directly proportional to the current. That means if you increase the current, the field gets stronger. Decrease the current, the field gets weaker. Second, the field strength depends on the distance from the wire. The farther away you go, the weaker the field gets. Simple as that. So after all these experiments and discoveries, we come back to one single fundamental truth. This is the main takeaway from our entire discussion today. An electric current is nothing but moving electric charges, and whenever charges move, they create a magnetic field around them. And this brings us to one last, very exciting question for you to think about until our next explainer. We've clearly established that electricity can produce magnetism, but what about the other way around? Is it possible for a magnet to create an electric current? Think about it, and we'll find out the answer next time. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के जो मैजिकल इफेक्ट्स हैं ना, उसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट्स ऑन होती हैं, फैंस चलते हैं, पर क्या आपको पता है कि इससे इनविजिबल फोर्सेस भी बनती हैं? आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस जादू को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो आते हैं हमें सवाल पे। एक सिंपल सी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और एक नॉर्मल सा मैग्नेट। इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन है? कोई सीक्रेट लिंक है क्या? सुनने में तो मैजिक लगता है, पर बॉस ये प्योर साइंस है। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले एक सिंपल सा रूल, और ये जो आइडिया है ना, आगे हम जो भी पढ़ेंगे, पावरफुल मशीन से लेकर सिंपल रूल्स तक, सबका फाउंडेशन यही है। और वो आइडिया ये है कि करंट खुद मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकता है। और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से, सोचो एक कॉपर वायर से गुजरता है, तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज द पेरेंट और मैग्नेटिज्म उसका बच्चा है। कूल राइट? ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये तो आ गया समझ। बट उसकी डायरेक्शन क्या है? कहाँ जा रही है वो फील्ड? ऊपर? नीचे? वेल, इसे पता लगाने के लिए हमारे पास एक सुपर हैंडी टूल है, और इसका नाम है द राइट हैंड थंब रूल। रूल बहुत सिंपल है। सोचो अगर आपका अंगूठा यानी थंब करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं ना, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगी। चलो सब लोग मेरे साथ करो, कम ऑन। अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ। अब इमेजिन करो कि तुमने एक वायर पकड़ी हुई, ठीक है? अब अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो और देखो तुम्हारी फिंगर्स जैसे वायर के चारों तरफ घूम रही हैं। बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इजी पीजी। अब यहां इस पिक्चर को देखो, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अभी की। अगर करंट ऊपर जा रहा है, जिसे हमने थंब से दिखाया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स में घूम रही हैं, बिल्कुल आपकी उंगलियों की तरह। परफेक्ट। ठीक है, तो एक सीधी वायर से तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, पर व्हाट इफ हमें एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए? एक छोटी सी वायर से तो काम नहीं चलेगा, राइट? सो लेट्स लेवल अप। सो पावर बढ़ाएं कैसे? सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेंट्रेशन। जब हम उस सीधी वायर को मोड़कर एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके सेंटर में आके फोकस हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। और जितने ज्यादा लूप्स, उतनी ज्यादा फील्ड कॉन्सेंट्रेट होगी, यानी उतना ही पावरफुल हमारा मैग्नेट बनेगा। सिंपल। और जब हम ऐसे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स को एक सिलेंडर की शेप में एकदम पास लपेट देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको हम कहते हैं अ सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पावर हाउस है। और अब देखो कितना अमेजिंग कंपैरिजन है। एक सोलेनॉइड जिसमें करंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सरप्राइजिंगली बिल्कुल एक परमानेंट बार मैग्नेट जैसी दिखती है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, सब कुछ सेम, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी। और यही चीज सोलेनॉइड्स को इतना यूजफुल बनाती है। ओके, अब तक हमने करंट से मैग्नेट बनाया, पर अब आते हैं असली पार्ट पे। सोचो हमने करंट से एक मैग्नेट बना लिया। अब क्या होगा अगर हम इस मैग्नेट को एक और रियल मैग्नेट के पास ले जाएं? द रियल फन बिगिंस नाउ। सोचो इसके बारे में। आपके पास एक वायर है जिसमें करंट है, यानी वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट है, और आपने उसको एक बड़े पावरफुल मैग्नेट के फील्ड में रख दिया। सोचो क्या हो सकता है? दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास, एंड द रिजल्ट इज मूवमेंट। बिल्कुल, जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पे एक
एक एक्चुअल फोर्स लगता है, एक पुश या पुल जो उसे हिला देता है। और पता है क्या, यही सिंगल प्रिंसिपल हर इलेक्ट्रिक मोटर का बेस है। लेकिन सवाल यह है कि ये धक्का लगेगा किस तरफ, अप, डाउन, लेफ्ट या राइट? वेल, इस फोर्स की डायरेक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक करंट की डायरेक्शन और दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और सिंपल रूल है, इन दोनों में से किसी एक को भी उल्टा कर दो तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। अब है फोर्स की डायरेक्शन को परफेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक और सुपर कूल रूल है, याद है? राइट हैंड से हमने फील्ड फाइंड की, अब लेफ्ट हैंड से हम फोर्स फाइंड करेंगे। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो अपना लेफ्ट हैंड लो और अपने अंगूठे, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर स्ट्रेच करो, एकदम परपेंडिकुलर। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं मैथ्स में, बिल्कुल वैसे ही। अब अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और इसको याद रखने का एक सुपर सिंपल ट्रिक है, FBI। अरे अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिजिक्स का रूल, F फॉर फोर्स यानी थंब, B फॉर बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B होता है, वो है फोर फिंगर, और I फॉर करंट जो है मिडिल फिंगर, FBI। आप कभी नहीं भूलें। ओके गाइस, तो हमने काफी सारे रूल्स पढ़ लिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बट द बिग क्वेश्चन इज, ये सब रियल लाइफ में काम कहाँ आता है? व्हाई शुड यू केयर? लेट्स सी। सीरियसली, हर जगह। आपके घर में जो फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, उसके अंदर की मोटर से लेकर आपके हेडफोन्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में जो लाइफ सेविंग MRI मशीन्स होती है ना, वो सब इसी फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इतना ही नहीं, आपके घर की वायरिंग में जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं ना, जैसे फ्यूज या अर्थ वायर, वो भी इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ताकि आपको कभी करंट ना लगे। सो इट्स अ लाइफ सेवर, लिटरली। बट वेट, इट गेट्स इवन क्रेजियर। क्या आपको पता है कि आप राइट नाउ एक लिविंग मैग्नेट हो? हाँ, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल करंट्स आपके दिमाग के नर्व सेल्स में दौड़ रहे हैं ना, वो भी अपनी टाइनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। इनफैक्ट आपका हार्ट और ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स बनाते हैं कि उन्हें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी किया जा सकता है। अमेजिंग, इजंट इट? तो क्लास खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क या चैलेंज समझ लो। अभी अपने आसपास देखो, स्पीकर्स, डोरबेल्स, फैंस, हेडफोन्स। अगले 10 मिनट में आप कितने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी करंट से चलने वाली मैग्नेट्स स्पॉट कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट क्रूशियल टॉपिक समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही, पर आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी। और वो है हमारे घरों के अंदर आखिर इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। तो चलो शुरुआत एक छोटी सी मिस्ट्री से करते हैं। आप सोचो ज़रा, हम रोज़ कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कितने अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। टीवी, फ्रिज, फ़ोन चार्जर, लैपटॉप, लिस्ट बहुत लंबी है। पर इन सब को शॉर्ट सर्किट से या अचानक खराब होने से आखिर बचाता कौन है? कौन है वो सीक्रेट हीरो? चलो पता लगाते हैं। इस सीक्रेट हीरो को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें जर्नी फॉलो करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी, उस पॉइंट से जहां से वो हमारे घर में एंटर करती है। तो देखो, आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल है या ज़मीन के नीचे से जो केबल्स आती हैं, वहाँ से पावर 2 मेन सप्लाई वायर्स के थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है। इन्हें ही हम कहते हैं मेन्स। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जाती है आपके इलेक्ट्रिक मीटर में, वही जिसमें रीडिंग आती है, और फिर वहाँ से पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, सो अब जब इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर आ गई है, तो चलो मिलते हैं इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स से। बेसिकली ये वो 3 वायर्स हैं जो अंदर का सारा काम संभालती हैं। गाइज, ये टेबल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको स्टार मार्क कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इनके कलर्स और फंक्शन बिल्कुल याद होने चाहिए। देखो, रेड इंसुलेशन वाली है लाइव वायर। इसको ऐसे याद रखो, रेड मतलब डेंजर, इसमें हाई पोटेंशियल करंट होता है। फिर आती है ब्लैक इंसुलेशन वाली न्यूट्रल वायर, जो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती है। इसके बिना करंट फ्लो नहीं करेगा। और आखिर में है ग्रीन इंसुलेशन वाली अर्थ वायर। ग्रीन मतलब सेफ्टी, तो ये एक सेफ्टी वायर है। इसका रोल हम आगे डिटेल में समझेंगे। और पता है, इन लाइव और न्यूट्रल वायर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पूरे 220 वोल्ट्स। जी हाँ, 220 वोल्ट्स। ये काफ़ी हाई पावर है, और यही वजह है कि सेफ्टी मेजर्स इतने एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाते हैं। तो अब जैसा हर कहानी में होता है, जहाँ हीरो होते हैं वहाँ विलेंस भी तो होते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के भी 2 बड़े दुश्मन हैं, 2 मेन डेंजर्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
पहला विलन है शॉर्ट सर्किटिंग। अब ये क्या होता है? बेसिकली जब किसी वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इमेजिन करो कि करंट ने आपके अप्लायंस को बायपास ही कर दिया और एक डेंजरस शॉर्टकट ले लिया। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब वायर्स की ऊपर की प्लास्टिक इंसुलेशन कट जाती है या डैमेज हो जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो करंट एकदम से अब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और दूसरा विलन है ओवरलोडिंग। ये नाम आपने सुना भी होगा। इसको समझने का बेस्ट तरीका है, इमेजिन करो कि वायर के अंदर ट्रैफिक जैम हो गया है। सीरियसली, ऐसा तब होता है जब एक सर्किट से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश की जाती है। तो सवाल ये है कि ये ट्रैफिक जैम आखिर लगता क्यों है? इसके दो मेन रीजंस है। एक तो हो सकता है कि पीछे से सप्लाई वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए, लेकिन जो दूसरा रीजन है ना, वो गलती हम लोग अक्सर करते हैं। वो है एक ही सॉकेट में बहुत सारी हाई पावर अप्लायंसेस कनेक्ट कर देना। आपने देखा होगा, एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर उसमें टीवी भी लगा दिया, फ्रिज भी, और साथ में माइक्रोवेव भी ऑन कर दिया। ये ओवरलोडिंग की सीधी सीधी रेसिपी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन विलन से फाइट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में दो बहादुर सेफ्टी गार्ड्स, दो हीरोज हमेशा तैयार रहते हैं। और ये है हमारे बॉडीगार्ड्स, द इलेक्ट्रिक फ्यूज और द अर्थ वायर। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं और हमें कैसे बचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज, आप समझ लो, एक सैक्रिफाइशियल हीरो है। वो खुद को कुर्बान कर देता है आपके अप्लायंसेस को बचाने के लिए। होता क्या है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो फ्यूज के अंदर एक पतली सी स्पेशल मेटल की वायर होती है। वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से इतनी गर्म हो जाती है कि वो पिघल जाती है, यानी मेल्ट हो जाती है। और जैसे ही वो वायर टूटी, सर्किट ब्रेक हो गया, हाई करंट का फ्लो रुक गया, और रिजल्ट आपका महंगा टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर बच गया। ये इतना इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है कि इसे डोमेस्टिक सर्किट्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस माना जाता है। इस लाइन को ध्यान से सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब साफ है, यह आपके एग्जाम के लिए भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो पे, द अर्थ वायर। इसका काम क्या है? सोचो, आपके घर में कोई मेटालिक बॉडी वाला अप्लायंस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस या कूलर या पुराना वाला फ्रिज। अब मानो उसके अंदर कोई वायर टूट गई और उसकी मेटल बॉडी में करंट आ गया। अगर आप उसे टच करोगे तो एक बहुत डेंजरस शॉक लगेगा। यहाँ पर अर्थ वायर काम आती है। वो उस लीक्ड करंट को एक सेफ, लो रेजिस्टेंस पाथ देकर सीधा जमीन के अंदर भेज देती है, और आप एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हो। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। हमने शॉर्ट सर्किट समझा, ओवरलोडिंग समझी, और हीरोज यानी फ्यूज और अर्थ वायर के बारे में भी जान लिया। अब टाइम है इस नॉलेज को अप्लाई करने का। चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सिचुएशन ये है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर रेटिंग है 2 किलोवाट। इसे आप एक ऐसे डोमेस्टिक सर्किट में ऑपरेट कर रहे हो जहां वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, पर उस सर्किट की जो करंट रेटिंग है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो सिर्फ 5 एम्पियर है। सवाल ये है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब आप ओवन ऑन करोगे? अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सा टूल, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो है करंट यानी I इज इक्वल टू पावर यानी P डिवाइडेड बाय वोल्टेज यानी V। बहुत सिंपल है। चलो अब इसमें हम अपने क्वेश्चन की वैल्यूज डालते हैं। ऑलराइट, कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले पावर P है 2 किलोवाट। हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन में इसको वॉट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 2000 वॉट्स। वोल्टेज भी हमें पता है 220 वोल्ट्स। तो फॉर्मूला के हिसाब से करंट I हो गया 2000 वॉट्स डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9.09 एम्पेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस ओवन को ठीक से काम करने के लिए 9.09 एम्प्स का करंट चाहिए। और बस यही है प्रॉब्लम। यहाँ पर आके सारी बात क्लियर हो जाती है। देखो, ओवन को चलने के लिए चाहिए 9.09 एम्प्स, लेकिन हमारा सर्किट सेफली दे कितना सकता है? सिर्फ 5 एम्प्स। तो ये तो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हो गया। किसका? ओवरलोडिंग का। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही आप ओवन का स्विच ऑन करोगे, वो सर्किट से 9.09 एम्प्स करंट खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्किट तो 5 एम्प्स का है, तो वो हो जाएगा ओवरलोड। और फिर आएगा हमारा हीरो, द 5 एम्प फ्यूज। वो अपना काम करेगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और ओवन फौरन बंद हो जाएगा। तो देखा आपने, फ्यूज ने एक पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन होने से रोक लिया।
और अब क्लास के एंड में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। आप अपने घर में देखो, आपके लैपटॉप के चार्जर में शायद 3 पिन्स होंगी, पर आपके मोबाइल फोन के चार्जर में सिर्फ 2। ऐसा क्यों है? वाई द डिफरेंस? आज हमने अर्थ वायर और उसके सेफ्टी फंक्शन के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसको यूज करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। इट्स अ ग्रेट वे टू अप्लाई व्हाट you've learned. So keep observing, keep questioning, and keep learning.